اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا، تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکار دیا ہے، اس لیے ان میں سے بہت تھوڑے ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی سرکشی، عناد، مخالفت حق اور انبیاء کے سامنے غرور و تکبر کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ حرص و ہوس کے گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی گئی تو ان لوگوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا۔ اس میں جو احکامات تھے ان کو اپنی مرضی سے تعویلات کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول بھیجے جو ان کی شریعت کے مطابق چلتے رہے۔ لغات القرآن کے مطابق کفینا کا مادہ کفو ہے۔ الکفا الکافیہ کا مطلب ہے گردن کا پچھلا حصہ، یعنی گدی، اور کفوتہ کفن کا مطلب ہے میں اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ چنانچہ کفینا کا مطلب ہے ہم نے پیچھے پیچھے چلایا۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم کفینا علی آثارہم بعیسیٰ برسلنا وکفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اور رسول بھیجے، پھر اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا کی۔ اسی طرح پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرتے ہیں اس تورات کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ ہمارے انبیاء علیہ السلام جو ہمارے فرمانبردار تھے اس کتاب کے مطابق یہود کو حکم دیتے رہے۔ اللہ والے اور علماء اس کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے اور وہ یہود اس کے گواہ تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کے نقش قدم پر یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام بھیجتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہی انبیاء کی
आखिरी कड़ी के तौर पर भेजा और उनको जो किताब हमने दी यानी इंजील जो तौरात की तस्दीक करती है और इंजील में भी उसी तरह हदायत और नूर है जिस तरह तौरात में है। फिर जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमने मोजज़ात अता किए उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को भी मोजज़ात अता किए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुर्दों को ज़िंदा करना, मट्टी के परिंदे बनाकर उनमें रूह फूंकना, बीमारों को शफा याब करना और रूहुल कुदुस से उनकी तायीद किया जाना, ये सब मोजज़ात हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते थे। लेकिन तौरात के बाज़ अहकाम की मुखालफत की वजह से बनी इसराइल ने उनकी मुखालफत की और उन्हें झुठलाया। वो अपने हसदो अनात में अंधे हो चुके थे। नाज़रीन, ये रूहुल कुदुस क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। और रूह के लुग़वी मानी है राहत व सुरूर, खुशी, रहमत, वुसअत वगैरह, जबकि साहिब मुहीत रहमतुल्लाह अलैह ने रूह के मानी फरहत व मुसर्रत, राहत व रहमत, बाद नसीम, मदद, इंसाफ व अदल, जिससे फरियादी को राहत व सुकून मिल जाए, वो भी लिखे हैं। चुनांचे रूह के मानी आम इंसानी रूह के अलावा रहमत, खुदा की तरफ से वही और ख़ुद कुरान मजीद मुराद है। इसके अलावा रूह अल्लाह के हुक्म को भी कहते हैं, जैसा कि पारा नंबर 15 सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 85 में इरशाद बारी ताला है, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दीजिए कि ये मेरे रब के अमर यानी हुक्म से है और नहीं दिया गया तुम्हें इसका इल्म मगर थोड़ा सा। साहिबुल लुगात इससे अल्लाह ताला की वही मुराद लेते हैं, यानी इसका ताल्लुक आलम अमर से है, दुनिया महसूसात से नहीं। इसलिए इसकी माहियत को समझना इंसानी बस में नहीं, इस पर ईमान लाना और इसकी तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है। साहिबुल मीनार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस आयत में जो फरमाया गया है कि हमने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदुस से मदद दी, इसका मतलब है वही से तक़वियत अता की। अक्सर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, मुफस्सिरीन व मुहक्किकीन रहमतुल्लाह अलैहिम भी इससे यही मुराद लेते हैं। बाज़ ने रूहुल कुदुस से मुराद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस भी ली है। पारा नंबर 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 102 में इरशाद बारी ताला है, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिन रब्बिका बिल हक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दीजिए कि इसे रूहुल कुदुस जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने नाज़िल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से ये हक़ है, हक़ के साथ है। यानी यहाँ रूहुल कुदुस से मुराद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हैं। चूँकि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का वही के साथ खुसूसी ताल्लुक़ है, यानी उनके ज़िम्मा अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर आना है, इसलिए भी उन्हें रूहुल कुदुस कहा जाता है। नाज़रीन, यहाँ अल्लाह ताला ने यहूद के 2 ग्रोहों की बात की है। एक ग्रोह वो था जो अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता था और दूसरा ग्रोह वो था जो ना सिर्फ मुखालफत करता था बल्कि अपने अनाद की वजह से उनको कत्ल तक भी कर देता था। अल्लामा ज़माख़शरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ना सिर्फ माजी में बल्कि हाल में भी उनकी यही हालत है और मुस्तक़बिल में भी ऐसी ही रहेगी। उन्होंने माजी में अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जादू और जहर के साथ माज़अल्लाह शहीद करने की नापाक कोशिश की। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवक्त विसाल फरमाया, खैबर के जहर आलूद लुकमे का असर बराबर मुझ पर रहा है। अब मेरी शाह राग कटने का वक्त करीब आ चुका है।
آج 1400 साल गुजर जाने के बाद भी यहूद की सरकशी और साजिशों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। मौजूदा दौर में ये लोग उसी शद्दोमत के साथ इस्लाम और उसके मानने वालों के खिलाफ मुसलसल अफरा तफरी मचाए हुए हैं। आलमी सियासत में अपने माल और दौलत और असर व रसूख का इस्तेमाल करके हर किस्म की रेशा दवानियों में ये लोग मसरूफ़ हैं। अब अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़माना तो नहीं रहा, लेकिन मुसलमान उनके इंतकाम का निशाना बनते जा रहे हैं। नादरीन, आज मुल्क पाकिस्तान, अपना अजीज़ वतन, इसकी हालत देख लीजिए कि यहूद को किस तरह मुसलमानों पर दस्तरस्त हासिल है और किस तरह वो नकब लगाकर मुसलमानों के ईमान को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। नादरून, यहाँ तज़किरा हुआ है अल-गिलाफ का, यानी इसका जिसका मतलब लग़वी मानी है मुहाफ़िज़, वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ पर छाई हुई हो, जैसा कि अंडे का छिलका है, इसी तरह सब्जियों और फलों के छिलके जो उनकी हिफाजत के लिए होते हैं। तलवार के म्यान को भी गुल्फ कहते हैं। वकालू कुलूबना गुल्फ में गुल्फ, इसमें गुल्फ जमा का सीगा है, यानी हमारे दिल गिलाफों में बंद हैं। अल्लामा राग़िब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ के नज़दीक इसके मानी ये हैं कि हमारे दिल गिलाफों में बंद हैं, इसलिए हम पर कुरान करीम की बातों का असर नहीं होता। और बाद ने कहा है कि इसका मतलब यह है कि हमारे दिल खुद इल्म और मार्फत से भरे हुए हैं, इसलिए हमें किसी नए इल्म की ज़रूरत नहीं है। हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इकरमा रहमतुल्लाह अलैह या सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि गुल्फ का मतलब है गिलाफ होना। औफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि इसका मतलब है उनके दिलों पर मोहर लगी हुई है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो समझते नहीं। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि उनमें समझ ही नहीं है और ना वो समझ ही सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, हकीकत यह है कि बल लानहुल्लाह बिकुफ्रिहिम, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर फटकार डाल दी है, यानी उन्हें दुत्कार दिया है। बस इसी वजह से वो कोई बात समझ नहीं पा रहे और ना ही आइंदा समझ सकेंगे। इस तरह उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। नतीजा ये है कि सिवाय चंद लोगों के वो ईमान नहीं लाएंगे। आज के सूरत हाल वाज़े है, आज के दौर में क्या कुछ हो रहा है, तो कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले इसकी निशानदेही कर दी थी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।